given a big hand. Please keep sitting for 2 minutes. I request you. I just request you, because we have to greet the artist who made this evening beautiful. I'm requesting the honorable chief guest, his lordship, Justice Sistani and Vivek Tankha Sahab, to please come on stage and present flowers. And if I can request Mrs. Sistani also to please come and give a bouquet to the artist. Mrs. Sistani, please. Give a big hand to these artists. Give a big hand to Barkha, and I can assure you that, as I told you, we already have a demand for the second part of this program, in which lots of artists we have not covered. पर विवेक भाई, पर आप कहेंगे कि मैं शेर बहुत सुनाता हूँ, पर ये शेर इस पे बनता है। उस दिन खुदा ने भी जश्न मनाया होगा जिस दिन उसने मेरी बेटी बरखा को बनाया होगा। उस दिन खुदा ने भी जश्न मनाया होगा जिस दिन उसने मेरी बेटी बरखा को बनाया होगा, पर उसमें भी बहाए होंगे कई आंसू जब उसने इसे जावरा में भेजकर खुद को अकेला पाया होगा। So now the fellow who made such a good music, his lordship, is हेमचंद प्रकाश। एक बहुत मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर होते थे जिन्होंने आएगा आने वाला, he is the grandson of, it is R. Sridhar. R. Sridhar happens to be the grandson of Hemchand Prakash of आएगा आने वाला film. Please present a bouquet to him. दूसरा प्रसन्नजीत सरकार, the lead guitarist. Please come. प्रसन्नजीत सरकार. विवेक भाई, please present a bouquet to प्रसन्नजीत सरकार. Then Mr. Savaldas, bass guitar. Mr. Savaldas, bass guitar. Bhavi, this is Sistani to please. और keyboard Bantu Gonzalez. Bantu Gonzalez. His lordship to please present the bouquet. And Mr. Tarun Octopus, Mr. Vivek Tankha to present the bouquet. और एक आदमी जिसको मैं बुलाना चाहूंगा, यतीश आचार्य, the music arranger. He brought all these artists. Is Yatish around? Yatish, please, jaldi se aao. Specially come from Kota, and he arranges all these artists. He is a part of International Melody Foundation. Please jaldi se kare. His lordship and Vivek Tankha sahab, इसको please bless करिए. He is a great artist himself. और एक सबसे इंपॉर्टेंट जो इंस्ट्रूमेंट में सबसे आखिर में इसलिए बुला रहा हूँ, वो तबला और ढोलक के बगैर कोई भी महफिल जम नहीं सकती, वो है इमरान खान साहब। इनका नाम ही इमरान खान साहब है, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट का नाम है। बहुत अच्छा। And I want to propose a vote of thanks to the VVIPs, lots of friends, lots of patrons, like JD Saab is with us, Ved Pratap Vedic, then specially Dehradun से बुद्धिनाथ जी मिश्र पधारे हैं, सुरेश केशवानी साहब कोने में बैठे हैं, और सुरेश केशवानी हमारे पैट्रन हैं, और मेहदी हसन साहब आपके घर में रहते थे, हमें मालूम है। और उसके अलावा मैं एक आदमी को जरूर ग्रीट करना चाहूँगा। आपने कहा था द मैन बिहाइंड दिस जादू, दैट इज हर हस्बैंड विकास पिंचा। Give a big hand to this Vikas Pincha, who has encouraged and really been a great support to this beautiful daughter of mine. Vikas ji, right? Well, you won't believe that this couple is not only parents but they are grandparents. ये नाना नानी please.
मैं बहुत बार नहीं बोलती हूँ, कभी कभी बोलती हूँ, आज मैं गा के सुना रही हूँ। दिल चीज है क्या जाना, ये जान भी तुम्हारी है। दिल चीज है क्या जाना, ये जान भी तुम्हारी है। तेरी बाहों में दम निकले, तेरी बाहों में दम निकले, हसरत हमारे है। दिल चीज है क्या जाना, ये जान भी तुम्हारी है। थैंक यू। एक नाम आखिरी जो मैं बोल रहा हूँ, वो मेरी बेटी जिसका मैंने आपसे बताया था, उसका नाम जुल्फी रखा गया। कुसुम के जाने के बाद शी इज माई इंस्पिरेशन, शी इज स्पेशली फ्रॉम बॉम्बे। प्लीज to support my dad, who's done this event after 2 years. He's again on the stage after 2 years, and I'm wishing that he just comes on the stage every second month now with such beautiful events. One more girl I would like to mention is my Delhi girl, Delhi daughter, that is Pooja. She stands with me. Pooja, please come. Pooja, come here. Pooja also is a part of our body. She also, because Zulfi बम्बई में रहती है और ये पूजा दिल्ली में रहती है, मेरी दिल्ली वाली बेटी है। ये भी बहुत अच्छा गाती है। ये शाहिद साहब को भी देख रहा हूँ। शाहिद साहब लेट आए। You miss something? अभी नहीं। Thank you very much. I can't name everyone, but हेमंत जी भी बहुत लेट आए, but at least you came. Thank you very much. Lovely, your coming was always inspiration. Doing any program with them, but I can't forget all of you to give a big hand to my friend, that is Rajesh Badal. Rajesh Badal, please come. Please greet Rajesh Badal, the filmmaker who has agreed to anchor a small show like this and be a part of International Melody Foundation. Please, Ajay. Just Chief. Very kind of you. Thank you very much. कोई कमी रही है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और अगली महफिल के लिए आपका इंतजार रहेगा। थैंक यू। Hello, this is a happy birthday of Barkha also. This is a happy birthday of Barkha also.
बहुत बढ़िया। अरे तो टिप्पणियाँ मिल हाँ सर बोलिए। आज डॉक्टर हरीश भल्ला ने बरखा जी का आयोजित किया, मैं समझता हूँ कि बहुत ही विलक्षण कार्यक्रम आने वाले सर्वश्रेष्ठ कार्यक्रमों में से मैं मानता हूँ। मैं क्या रहने का मन करे। बहुत ही अद्भुत आज का कार्यक्रम हमने कहा आप तो हम लोगों को भीष्म पितामह। पुराने गाने दिल को छूते हैं, नए गानों में जरा आवाज़ की बुलंदी होती है, अर्थ की थोड़ी कमी होती है। पुराने गानों में आवाज़ चाहे बहुत बुलंद न हो, लेकिन उनके अर्थ बहुत बुलंद होते हैं, गहरे दिल को छूते हैं। नौशाद के शब्दों में कह दीजिए कि जिसको सुन के हम नाचे वो गीत नया है, तो जिसको सुन के दिल झुमा वो गीत पुराना है। नौशाद साहब ने कहा नीचे कर प्रेम में नहीं ले हाँ बोल आज के प्रोग्राम भल्ला साहब मेरे प्रिय डॉक्टर तो है ही, लेकिन एक संयोजक है साहित्य संगीत के इतने बड़े जानकार हैं। दिल्ली में रह करके उन्होंने जो एक साहित्य संगीत की धारा बनाई है उसका मैं मुरीद रहा हूँ। बड़ी बात ये कार्यक्रम जो है वो एक नए ढंग का कार्यक्रम है, जिसमें कि एक पूरी रूपरेखा संगीत की, फिल्म संगीत की, और उसमें भी शब्दों कैसे शब्द भरे गए, कैसे संगीत भरा गया और किन परिस्थितियों में किया गया, कैसे गायकों ने गाया, उन सब को लेकर के एक पृष्ठभूमि तैयार की गई थी। और आज जिस समय के कानों में शोर वाले गीत सुनाई पड़ते हैं, ऐसे में अगर इस तरह के गीत सुनाई पड़े तो बहुत अच्छा लगता है। एक पूरी गंगा की धारा हमारे सामने रखी गई थी संगीत की। मैं उन्हें बहुत बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि इस तरह के कार्यक्रम को और करते हैं। नए गानों में और आजकल के नए गाने जो हैं और पुराने गानों में क्या आपको अंतर है? सौंदर्य का मतलब होता है संतुलन, सब कुछ का संतुलन होना चाहिए। शब्द, संगीत, स्वर, ये सब जब मिलता है, अभिनय, ये सब मिलता है, तब जाकर के एक सौंदर्य बनता है। इस समय क्या हुआ है कि शब्द गायब हो गया। इस समय जो फिल्मी गीतों में शब्द है ही नहीं और केवल ढोल नगाड़े बजते हैं। नगाड़ों से आप जो है वो बीट से आप ताल तो पैदा कर सकते हैं, लोग नाचने के लिए विवश तो हो सकते हैं, लेकिन भीतर में नृत्य नहीं करते। भीतर के लिए जरूरी है कि शब्द और स्वर का समावेश हो, संगीत का समावेश हो। जो नए पीढ़ी के लोग पुराने गानों को छोड़ के और ये ढोल नगाड़े और इस पे आप क्या कहना है? नहीं, वो उनकी मजबूरी है कि उनको जो इस समय दिया जाता है वो उसी में वो गाना पड़ता है। उनको कहा जाए कि जैसे उस समय के जो श्री रामचंद्रन या इस तरह के जो खयाम, इस तरह के जो संगीतकार, वो संगीतकार अभी नहीं है। वो संगीतकार में उनको जो संगीत नहीं देंगे तो गाएंगे क्या? तो वो तो एक स्वर है, उनको जिस तरफ ढाला जाए। तो नई पीढ़ी में स्वर में कोई कमी नहीं है, उनकी कला भी है, लेकिन उनके पास शब्द नहीं है, अच्छे शब्द नहीं। जो आज प्रोग्राम हुआ था आपने देखा होगा कि चेयर कम पड़ी है जी, तो इस पे इसका मतलब यही है कि जहाँ पर शब्द और स्वर और संगीत तीनों रहेगा, धारा बहेगी, त्रिवेणी में नहाने के लिए ये हॉल बहुत छोटा पड़ जाएगा। ये इसको तो और बड़े पैमाने पर करना चाहिए
ताकि फिल्म संगीत का जो गंगा है, उस गंगा में लोग ठीक से अवगाहन करके जान में ना आ सकें। प्रोग्राम था आपको, आपके हिसाब से काफ़ी क्राउड वगैरह क्या? काफ़ी इंकरेज किया लोगों ने और पसंद किया। लोग प्रोग्राम के 1 घंटे पहले से बैठे थे और बाद तक रहे, तो इट फेल्ट नाइस, इट वाज नाइस एक्सपीरियंस। जो आजकल के जो पीढ़ी है नए गानों को की तरफ है, पुराने गानों को छोड़ती जा रही है, तो इस पे आपको क्या कहना? मैं इतना ही बोलूँगी, ये प्रोग्राम का जो कॉन्सेप्ट है वो it is for that only that we have shown the era of Shamshad Begum, Suraya ji, Noorjahan ji, then Lata Mangeshkar ji, and then they are still singing, Lata ji and Asha ji. And after that Suneethi and Rekha Bhardwaj, Kanika Kapoor ji. So it's a journey. And people loved those numbers, Shamshad ji ke bhi, and people loved, I could see the audience. They were enjoying today's numbers also. So music is appreciated everywhere and by everyone and every kind. नए लोगों को कैसे? नए लोगों को, मैंने बहुत से नए लोगों को मैं जानती हूँ जो पुराना म्यूज़िक बहुत पसंद करते हैं। लाइक उन्हें मतलब उनका एक्सपोजर कम है, आई वुड से, कि वो सुन कम पाते हैं। अगर वो सुने तो दे वुड लव। लाइक आज मैंने देखा 2-3 छोटे बच्चे भी थे, दे वर एंजॉइंग शमशाद बेगम जी एंड नूरजहां सॉन्ग मोर देन न्यू नंबर्स। क्या आपको लगता है कि सब ढोल नगाड़ों की आवाज़ में सब पुराने गाने भूल गए? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं मानती हूँ। अगर ऐसा होता तो आज क्राउड नहीं होता, जिसमें यंग भी काफ़ी थे। पर आपके गाने सुनने के लिए काफ़ी चेयर वगैरह सब कम पड़ गई, हॉल छोटे पड़ गए। तो इसके बारे में मैं क्या, आई एम वेरी हैप्पी। क्या संदेश देंगे? का जो क्राउड है, आई कम फ्रॉम बॉम्बे, सो बॉम्बे क्राउड इज डिफरेंटली। हैड आई डन दिस प्रोग्राम इन बॉम्बे, आई वुड हैव टेकन सम डिफरेंट काइंड ऑफ सॉन्ग्स। लेकिन बॉम्बे की जो दिल्ली की जो ऑडियंस है वो बहुत ही सुनने वाले जिसको बोलते हैं, एक सिंगर को सुनने वाले चाहिए रहते हैं। तो ये वो तरह की ऑडियंस थी, कनौजिया, लाइक ट्रू लिसनर्स, समझने वाले संगीत को और गुड लिसनर्स। तो गाने वाले का मज़ा डबल हो जाता है ऐसे। ठीक है। थैंक यू।